آئے گا کل بجٹ آ رہا ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ عوام دوست بجٹ آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو کل بجٹ آ رہا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں اپنا بجٹ دے دیا۔ آپ نے دیکھا کہ 100 ارب کا سرپلس بجٹ دیا، اور جو دو مین شعبے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا حصہ رہے ہیں، یعنی کہ صحت اور ایجوکیشن، ان کے اوپر 60% اضافہ کیا ہے ہم نے اپنے ایگزسٹنگ بجٹ کے اندر۔ تو جو ہمارے سوشل سیکیورٹی پروگرامز ہیں، جیسے کہ احساس پروگرام تھا، اور اس ملک کا جو سب سے نچلی سطح پہ رہنے والا شہری ہے اس کو ریلیف دینے کا ہم نے یہ کر دکھایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی معیشت میں، انہی حالات میں، اگر کے پی کے اندر تحریک انصاف ایک عوام دوست بجٹ دے سکتی ہے تو پھر وفاقی حکومت کے پاس ایسا کوئی جواز نہیں ٹھہرتا کہ وہ ایک عوام دوست بجٹ نہ دے۔ بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت، تیل کی مد میں آپ نے پاکستان کے غریب کی کمر توڑ دی۔ آج پاکستان کا کسان جو ہے اپنی گندم کو سڑک پہ لے کے بیٹھا، اس کے پاس خریدار کوئی نہیں، اس کو اگلی فصل کاشت کرنے کے لیے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ تحفہ تو آپ نے ابھی تک اس کو دیا ہے۔ آج پورا پاکستان نظریں لگائے بیٹھا ہے کہ کیا یہ وفاقی حکومت، جس نے اتنے دعوے کیے تھے، جیسے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھیں، یا جب ہماری حکومت تھی جو ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے تھے، کیا یہ کوئی ریلیف ہمیں دے سکتے ہیں؟ نظر یہ آتا ہے کہ آئی ایم ایف کے آگے یہ بچ چکے ہیں۔ نظر یہ آتا ہے کہ اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کو چپکے رہنے کے لیے یہ ہر شرط ماننے پر تیار ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آئے دن جو ہے انرجی کی پرائسز بڑھائی ہیں، پیٹرول کی، ڈیزل کی پرائسز بڑھائی ہیں، اور عوام کو مزید اس کے بوجھ نیچے دبا دیا ہے۔ کل ان کے پاس موقع ہے جس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو ریڈیم کرنے کا، یا کچھ اس میں سے اپنی عزت کو بحال کرنے کا۔ ہم یہ کوشش کریں گے، پاکستان تحریک انصاف جو اپوزیشن میں بیٹھی ہے، کہ ہم انشاءاللہ اس بجٹ کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو کریں گے بطور پاکستان کے نمائندوں کے، بطور منتخب نمائندوں کے۔ ہم اس کے اوپر جو ہے تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے حلقے کی عوام کو اور اپنے ملک کی عوام کو اس میں ریلیف دلوا سکیں۔ اچھا سر، کیا لگتا ہے آپ کو کل جب بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے؟ پاکستانی تاریخ میں بہت بڑے بڑے بجٹ پیش ہوئے ہیں، اور خاطر خواہ دیکھا جائے کوئی ایسا بجٹ آج تک تاریخ میں شامل نہیں ہے جس میں مڈل کلاس طبقے کو کوئی ریلیف ملا ہو۔ کل نیشنل اسمبلی سے کوئی توقع ہے آپ کو، ان کی ممبران سے توقع ہے، یا جنہوں نے بجٹ پیش کرنا ہے ان سے توقع ہے، یا کوئی بری خبر ہی سنانے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، بجٹ میں ریلیف کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے خرچہ کم کرنے کا، اور ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے وسائل میں اضافہ کرنے کا۔ آپ نے دیکھا ہماری پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت آئی تھی، اس میں 2 سال کووڈ کے تھے، پینڈیمک کے تھے۔ ان 2 سالوں میں عالمی دنیا کے اندر نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اچھی حکمت عملی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی اچھی پالیسی تھی، جس میں کووڈ کے دوران بھی ہم نے آپ کو پازیٹیو گروتھ دی۔ ہم نے جب یہ اکانومی چھوڑی تھی تو 6% کی گروتھ پہ ہم نے اکانومی چھوڑی تھی، یہ نیگیٹو گروتھ کے اندر ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارا معیشت کا پہیہ چلا، ہمارے ملک میں انڈسٹری بڑھی۔ جب انڈسٹری بڑھے گی، جب کاروبار بڑھے گا، جب آپ کی آمدن بڑھے گی، تو ریلیف ملے گی لوگوں کو۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا جو یہ آج میں چونکہ ان کا ریسرچ پڑھ رہا ہوں، پیپرز پڑھ رہا ہوں، یہ جو کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہم نے گیپ کم کر دیا، تو عوام کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے وہ گیپ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، کیونکہ ان کی اکانومی شرنک کی ہے، کیونکہ ان کا امپورٹ بل شرنک کی ہے، اس لیے وہ گیپ کم ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ نے ریلیف دینا ہے عوام کو، تو آپ کو اپنی معیشت کے پہیے کو بڑھانا پڑے گا، اپنی معیشت کے پہیے کو چلانا پڑے گا، اور جتنی آمدن آپ بڑھائیں گے اتنی ریلیف آئے گی۔ تو ہم نے تو اپنے دور میں مڈل کلاس کو اور لوور مڈل کلاس کو ریلیف دی تھی، اب ان کی باری ہے، دیکھتے ہیں کیا ریلیف دیتے ہیں۔ سر، چائنا کا دورہ کر گئے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب، وہ کہتے ہیں بڑا کامیاب دورہ رہا ہے، تو وہ ادھر انہوں نے اسپیچ کے دوران یہ بھی کہا کہ میں مانگنے نہیں آیا، آپ انویسٹمنٹ کریں۔ کیا پاکستان کے موجودہ حالات میں کوئی غیر ملکی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ بڑا کامیاب دورہ رہا ہے، اور کامیاب دورے کی کامیابی ہی یہ تھی کہ ڈپٹی میئر نے آ کے ان کو ریسیو کیا۔ تو چائنا پاکستان کا وہ دوست ہے جس نے ہر اچھے برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ ہمارے سب سنگین سے سنگین وقت میں بھی چائنا ایک چٹان بن کے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ آج بھی آپ کی سی پی پروجیکٹ جو ہیں وہ رکے پڑے ہیں، اب یہ کہہ تو رہے ہیں، دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم اس کو آن لائن کر آئے ہیں، ہم پروجیکٹ کو ریوائیو کروا آئے ہیں، لیکن جب تک ہم کوئی ٹھوس چیز اس میں دیکھیں گے، یہ اسی طریقے سے ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ سعودی عربیہ سے پیسے آ رہے ہیں، ہمیں کہا گیا کہ UAE سے پیسے آ رہے ہیں، یہ ابھی تک سب الفاظی ہیں۔
जब तक इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल हिकमत अमली नहीं होती, जब तक कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिए जाते, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। अल्लाह करे इस मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, अल्लाह करे सऊदी अरेबिया से, चाइना से, UAE से और हमारे दोस्त ममालिक से पैसे आए, क्योंकि इस हुकूमत से तो रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा। 13.5 अरब जो है का इन्होंने 13,000 करोड़ का इन्होंने जो है अपना रेवेन्यू टारगेट दिया है, वो ये रेवेन्यू टारगेट नहीं मीट कर पा रहे। आपने ये भी देखा है कि इनका सिर्फ एक्सपेंडिचर और जो डेट रिसर्विसिंग है वो 9,500 अरब के ऊपर पहुंच गई है। तो पीछे इनके पास बाकी हुकूमत के पास तो खर्चा करने के लिए पैसे बचेंगे ही नहीं। हम बदकिस्मती से डिपेंडेंट है उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि बाहर से कोई पैसा आए हमारे पर, हमारी मीशत का पहिया चले। तो हम बहैसियत पाकिस्तानी चाहते हैं कि हमारी मीशत मुस्तहकम होनी चाहिए, हमारे मुल्क में पैसा आना चाहिए, हमारे मुल्क में कारोबार बढ़ना चाहिए, लेकिन हुकूमत को भी इस मुल्क के अंदर वो इन्वायरमेंट क्रिएट करनी होगी अपनी पॉलिसी के ज़रिए। और पॉलिसी का जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वो बजट होता है। जो वज़ीर ख़जाना कल बजट पेश करेंगे वो आपको रोड मैप देगा कि इस हुकूमत की आगे पॉलिसी क्या है इस मुल्क के लिए, और वो कल आपके सामने अच्छा, तैमूर मलिक साहब से सवाल है मेरा। सर, रमज़ान से छोटी ईद और छोटी ईद से बड़ी ईद आ गई, ना तो शाह साहब बाहर आए हैं, ना इमरान खान साहब की कोई खबर है, और बल्कि अब तो कोई खबर ही आना बंद हो गई है कि क्या मामला चल रहे हैं। सर क्या लगता है, कब तक आप अपने एनालिसिस से क्या लगता है आपको, कब तक देख रहे हैं बाहर? और सेकंड थिंग सर, ये मन पसंदीदा लोग हैं जो पाकिस्तान की सियासत की, वो चेहरे हैं जो जिनको अवाम बहुत पसंद करती है, ये दो चेहरे खासतौर पर शाह साहब और इमरान खान साहब। तो लोगों का रुझान इन दो मनपसंद शख्स के अलावा ना पार्लियामेंट की तरफ ध्यान है लोगों का, और लोग मतलब इंटरेस्ट लेना बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो कब तक खुशखबरी सुना? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप सबको और कौम को मुबारक हो कि पिछले हफ्ते जो साइफ़र केस था, सबसे मुश्किल केस जो था दोनों पे बनाया गया, वो ख़त्म हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी साहब की हद तक तो अब उनकी कोई सज़ा नहीं है, वो किसी चीज़ में सज़ा याफ्ता नहीं है, कोई केस इस तरह का चल नहीं रहा। जहाँ तक उनके ऊपर केसेस की बात है तो पिछले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमें बताया गया कि उनके ऊपर 55 केस हैं, 17 इस्लामाबाद में और 38 के करीब पंजाब के अंदर। उनमें ज़्यादातर में बेल है। कल तक लाहौर के 8 केसेस में उनका रिमांड हुआ। जैसे ही वो रिमांड ख़त्म होता है हम बेलों की तरफ चले जाएंगे उन केसेस में भी, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो जल्दी बाहर आ जाएंगे। इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त एक सज़ा और है जिसका भी फ़ैसला होने लगा था तो उन्होंने जज बदली कर दिया। आज वो भी मामला चल रहा है। सलमान राजा साहब ने कहा है, सलमान सफदर साहब ने कि जी जल्दी उसका फ़ैसला सुनाया जाए। और उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह जो इसलिए खान साहब का भी बाहर आने के चांस जल्दी हैं, लेकिन उसमें भी कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। ये कल की बात नहीं है, ये 2 दिन की बात नहीं है। उसके अलावा कानूनी तौर पे आज का दिन फिर अहम है कि इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इस्लामाबाद की सीटें लग रहा था कि इमरान खान साहब को वापस मिल जाएंगी, उन्होंने ट्रिब्यूनल ही खुद बदल दी है और एक रिटायर्ड जज को नोटिफाई भी कर दिया। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने इस वक्त मामला चल रहा है। मैं और ज़ैन कुरैशी साहब वहीं जा रहे हैं देखने कि आज वहाँ क्या फ़ैसला है। जो सुनने में आया है उसमें तो ये आया है कि हाई कोर्ट ये कहेगी कि आप इस तरह नहीं कर सकते। सो हम अपने मैंडेट के लिए भी लड़ रहे हैं, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकी तमाम वर्कर्स की रिहाई के लिए भी लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह खुशखबरी मिलती रहेंगी, हिस्सों में मिल रही हैं लेकिन मिलती रहेंगी। आखिर में ये बताइएगा, फायर वॉल की बात की जा रही है, सबसे ज़रूरी 40 अरब रुपया हुकूमत ने लगा दिया इसके ऊपर, सहाफ़ियों के ऊपर कदगन लगाई जा रही है, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, मेरा इसके ऊपर मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और हमेशा रहा है कि आप सोशल मीडिया को रेगुलेट तो कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। यूट्यूब का बंद करना, एक्स का बैन करना और दीगर ऐसे जो हरबे हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ये 21वीं सदी है, हर किसी का अभी यहाँ पे बात हो रही थी, जुगाड़ निकल आता है। तो पहले लोगों ने VPN इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, अब भी ऐसे होगा। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सोशल मीडिया एक्टिविटी को रेगुलेट ज़रूर कर लें, उसके हदूद व क़यूद का तयन ज़रूर कर लें। लेकिन ये कह देना कि हम एक फ़ायर वॉल लगा देंगे और उस फायर वॉल के पीछे जो है छुप जाएंगे, मेरे ख्याल से वो मुमकिन नहीं होगा। ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर का पैसा है जो इस्तेमाल किया गया है। मेरे समझने में अगर हम आपने अथॉरिटी बना दी, आपने FIA से साइबर क्राइम में लेके उसकी कहता अथॉरिटी बना दी, वो सारे आपके अच्छे इकदामात हैं। लेकिन अगर रेगुलेशन की तरफ जाया जाए ना कि रिस्ट्रिक्शन की तरफ, उसमें सबका फ़ायदा होगा। ज़ैन कुरैशी साहब, आखिर में ये बताइएगा कि एक तरफ ईद के बाद लॉन्ग मार्च की बात चल रही है, दूसरी तरफ सियासी जमातों के साथ बातचीत के हवाले से भी खबर आई है, तो सर क्या होगा, क्या कहते हैं? इसी में सर ऐड कर दीजिएगा कि इमरान खान साहब तक जिस तरह की उनकी जो है बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका ओपिनियन है,
मुझे नहीं लगता सर, और बाकी बहुत सारे सीनियर साहब इस पर तजिया कर चुके हैं कि खान साहब कभी भी अपनी रिहाई के लिए कॉल नहीं देंगे कि मुझे रिहा कराने के लिए आप लोग सड़कों में निकलें। देखिए, कॉल तो खान साहब ने खुद देनी है और जिसके लिए भी वो कॉल देंगे उनका एक पूरा मैकेनिज्म है, अपने वकला के थ्रू वो अपने पैगाम देते हैं, वो देते रहेंगे। जहाँ तक ये बात आ रही है ख़त की, और ये उस ख़त में से निकलने वाली बात है, मैंने अभी तक ये ख़त नहीं देखा। मैंने सुना ज़रूर है इसके बारे में, इसके ऊपर सोशल मीडिया और मीडिया पे चर्चा ज़रूर हो रहा है, लेकिन जब तक मैं एक चीज़ को अपने आंखों से पढ़ ना लूँ, देख ना लूँ, उस पर मेरे ख्याल से कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। अगर खान साहब उसमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अब ये स्पेकुलेशन की बात है कि जो हमने सुना है कि ख़त में है, उसमें 3 मुतालबात हैं। 2 मुतालबे तो हमारे पहले दिन से हैं कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के ऊपर कमीशन बनना चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये जो 16 सीटों वाली हुकूमत आज मार्ज़ वजूद में आई हुई और पाकिस्तान के फ़ैसले कर रही है, वो कैसे बनी। दूसरा, उसमें खान साहब ने एक मुतालबा किया है कि 9 मई के ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए। 9 मई का जो सानिया है, ये बहुत बड़ा सानिया है और उसके अंदर आज हज़ारों ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान हैं जो पाबंद सिलासिल भी हैं या कोर्ट्स और कचहरियों के चक्कर भी काट रहे हैं, तो उसका भी कोई सदेबाब होना चाहिए और उसका भी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इन 2 चीज़ों के साथ अगर खान साहब कहते हैं कि जी बातचीत करनी है, तो उसकी पहली शर्त भी यही है कि हम 8 फरवरी के हमारे होने वाले इलेक्शन का कमीशन बने, 9 मई का कमीशन बने, उसकी हमें फाइंडिंग्स मिले। जब उसमें से हमारे चुराए हुए मैंडेट की, हमारा 8 फरवरी से मैंडेट यही रहा है, हमारा 8 फरवरी से बात ये रहा है कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला था, उसका जब तक कोई फैसला नहीं होता, किसी के साथ बैठ के बात करना मुश्किल हो जाएगा। उसका फैसला हो जाए, उसके ऊपर हुकूमत ये इंटेंट शो करे कि वो हकाइक लाना चाहती है, एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाना चाहती है, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात करना चाहती है। हम एक सियासी जमात है, हम सियासी कुव्वत है, हम हर सियासी कुव्वत से बात करने को तैयार हैं। थैंक यू।